Good morning, friends. Sorry. Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking the lecture of operation research. And as per our yesterday's discussions, we tried to understand about the transshipments problem, right? And we also try to discuss about the Moody method. I hope ke, I hope nobody has find some kind of the difficulties in the Modi problem. I try to uh, teach you as easy as possible. Uh, but if you have any kind of the problem to solve this kind of the problem regarding the optimum solutions, which is the stepping stone methods and the Modi method, you can contact me anytime, right? I will try to help you as much as possible. So in today's lecture we try to solve one another example of the transshipments problem. So the transshipments problem is a very unique kind of the problem, uh, which is covered in the transportations problem, right? The transshipments problems are basically, they are try to give or try to solve the example with the source to source and destination to destinations internal sharing of the transportation cost, right? So on your screen you can find the one question data of the transshipments problem, and as you can see that the problem which is having regarding the transshipments problem. So first they are given the m into m plus m into m matrix, which is that there is a two type of the factory, which is the factory A and factory B, while there is a two types of the store, which is the store X and store Y. For that they are given the demand and supply, right? So first step regarding to solve the transshipments problem, first you have to check whether the problem is in the balance condition or not. For that, first step of the transshipments problem is that you have to check the uh, total of the demand and total of the supply, both are same. So the total of the demand, which is the 200 plus 100, which is the 300, while the total of the supply, which is the 250 plus 50, which is the 300. So now prepare the problem in the tabular form. So here we have the total supply. Here we have the total supply, which is the Q is 300 unit. So what we are doing, we are adding the 300 unit at each and every place in the place of the demand and supply, right? We are adding the 300 units in each supply and demand unit cell. So we are try to do this. So here you can see that you are having were another table regarding the factory and stores multiplications, right? So now your demand and supplies are change, totally change. So your supply is 350 plus 350, then 300 and 300, while your demand is 300 300, 200 plus 300, that is the 500, and 100 plus 300, that is the 400. So here what we are just adding the 300 units. The 300 unit is the Q of this transportation or the transshipments problem, right? We are adding at each and every place of the demand and supply problem. So now after the next step after the adding the 300 unit at the demand and supply, we have to solve this problem with the Vogel approximations method. The Vogel approximations method, which is give the as much
as accurate answer with the initial feasible solution. Is a basic feasible solution. So the next step, which is regarding, we have to find out the VAM initial basic solution. So what we are doing, we are start with the doing as the taking the penalty of row and taking the penalty of the column. So here you can see that we are applying the VAM method, and after applying the VAM method, we are start the allocations with the as you can get the highest penalty in the row, then you have to start the allocations in that row with the lowest number of that row, and try to give the the maximum allocations to that number. The same procedure you have to do till that time as your all the demand and supplies are to be satisfied, right? All your demand and supply are to be satisfied until you have to do this process. After that, you can get the initial basic feasible solutions, and you can find the transportation cost with the initial basic feasible solution. Then after that step, you have to check the degeneracy in that problem. After that, you have to try to find the degeneracy in that problem. So here we can find out the degeneracy in the transportation problem. There is one equations, which is the m plus n minus 1, where m is denoted as a number of row, n which is denoted as a number of column, minus 1. So here we have the 4 row and 4 column. So 4 plus 4 minus 1, that is the 7. Now you have to check how number of allocations you are doing with the VAM methods, right? You have to count the number of allocations. So you are doing the number of allocations, that is the 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So here you are also doing a 7 number of allocation. You are doing a 7 place allocations in the above VAM solutions problem. So it will indicate that this kind of the problem which has a non-degenerate solution, this kind of the problem which has a non-degenerate solution. So now after checking the degeneracy, now you have to solve the optimal solutions of this problem. So to find out the optimal solutions, either you can use the stepping stone method, either you can use the Modi method. So for getting the as much as optimal solution with this problem, we are using the Modi method. So here what we are doing now, next step is you have to make a table with the allocation cell, in the previous problem. In suppose you are doing a 7 number of allocations in the previous cell, right? So you have make a table in which you are doing the allocation. So just we are making a table in which we are doing allocations, and that allocation you have to designate as a u1 to u4, that is a u1, u2, u3 and u4, that is your 4 row, and v1, v2, v3 and v4, that's your 4 column. And now the next step, which is regarding, you have to make equations, and find out in how many row, in which row there is a maximum allocations, or in which column there is a maximum allocations. If both are same, then you have to focus on in which row or in which column there is a maximum number of allocations. So what we are doing, so you can check in u1 row there is a 2 allocation, then in u2 row there is a 2 allocation, then in u3 row there is a 2 allocations, and u4 row there is a 1 allocations, right? Meanwhile same in v1 column there is a 1 allocations, v2 column there is a 1 allocations, in v3 column there is a 3 allocations, right?
So this is the maximum allocations in the V3 row, and in V4 column that is the, sorry, in V3 column there is a 3 allocations, and in V4 column there is a 2 allocations. As now we can total that allocations number, which is the in V3 column there is a 5, that is the maximum number of allocations in any kind of the row and any kind of the column. So now what we are doing, so we are taking the V3 column is taking, we are assuming that the V3 column is equal to 0. So now we have to make equations of all the first allocated cell value. So u1 plus v1 is equal to 0. Now u1 plus v3 is equal to 3. Then third equation, which is the u2 plus v2 is equal to 0. Then u2 plus v3 is equal to 2. Then u2 plus, sorry, u3 plus v3 is equal to 0. Then u3 plus v4 is equal to 1. Then u4 plus v4 is equal to 0. So here I try to create all kind of the equations. I try to create all kind of the equations with this method, right? So now the all equations are prepared, and now we have to put the value of the V3, and similarly as we can get the different undefined variables value, now we are getting all the undefined variable, which is the u1 to u4 and v1 to v4. And as you can see that in the another besides table, now you are having a value of the undefined variable of u1 to u4 and v1 to v3, v1 to v4. So this steps is complete. Now the another step of to find the further solution, which is about, you have to identify, you have to solve the evaluations of the cell. For evaluation of the cell, you have a equation which is the Cij minus in bracket ui plus vj, which is ui plus vj, right? So now you have to focus on the evaluations of the cell. For the evaluations of the cell, you have to focus on the WAM method solve problem, right? You have to focus on the WAM method solve problem. So in the given equations, now the equation which is the Cij minus in bracket ui plus vj, now with taking, you now in the WAM table, you have to focus on the variable in which there is a no allocations, आपको उन ब्रैकेट के ऊपर फोकस करना है, उन सेल के अंदर फोकस करना है जिस सेल के अंदर एलोकेशंस नहीं हुआ है, राइट? अब जैसे ही आप वहाँ पे फोकस करोगे तो आपके पास, आप देखोगे तो ये टेबल के अंदर जो एलोकेशंस नहीं हुए ऐसे जो टेबल है, दैट इज द 2, राइट? in the first row there is a 2 and 4, in the second row in 2 and 4, in the third row there is a 3 and 2, in the fourth row there is a 4, 4 and 1. These are the unallocated cell जिसके अंदर allocations नहीं हुआ है. Then this value you are taken as a Cij, right? In the meanwhile same minus the equations, you have to put the minus of that equation Cij, right? ये सॉल्व कैसे करना है, यानी आप जैसे ही फाइंड आउट करोगे इवैल्यूएशन ऑफ सेल, राइट, फर्स्ट, राइट, तो इसके अंदर Cij, यानी आप जो फर्स्ट रो का जो 2 है वो Cij की जगह पे आप पुट करोगे, माइनस का माइनस रखोगे. नाउ जो इक्वेशंस के अंदर ui प्लस vj है, तो ui की तरह से आपका ui हो जाएगा आपका u1. आपके पास u1 का जो वैल्यू है दैट इज द 3 प्लस आपका vj दैट इज द
जो 2 नंबर है वो किस कॉलम के अंदर आता है, यानी V2 कॉलम के अंदर आता है। तो आप जैसे V2 कॉलम के अंदर क्या है, यानी -2, सो आपका इक्वेशन कैसे हो गया, 2 माइनस इन ब्रैकेट 3 प्लस इन ब्रैकेट -2, इसको आप सॉल्व करके आपको आंसर फाइंड करो। ये चीज़ आपको सब अनएलोकेटेड सेल के लिए फाइंड आउट करनी है, और इस तरीके से आपको सारे जो है वो अनइवैल्यूएटेड सेल जो है वो फाइंड आउट करने हैं, राइट। जैसे ही आपको अनइवैल्यूएटेड सेल जो है, जो सारे आपको एक बार आप आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद आपको चेक करना है, इफ़ यू हैव all the unevaluated cell value is positive, then the above WAM solution which is the optimum solutions. But if you get any number, if you get the any number which have a negative value, which has a negative value, then this is not optimum solutions. You have to start the reallocations of this problem, right? You have to find the reallocations of problem. सो अगर इस चीज़ के अंदर आप देखोगे तो ये टेबल जो आपको दिख रहा है, ये टेबल के अंदर जो आपको वैल्यू मिल रही है, जो सारे अनएलोकेटेड सेल जो थे आपने जिसका इवैल्यूएशन किया, तो सारे आप टेबल के अंदर देखोगे कि जहाँ पे भी अनएवल्यूशंस था, अनएलोकेशंस था, उसको आपने जैसे इवैल्यूएट किए तो सारे के वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। यानी एक भी जो सेल था उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू जो है वो हमें नहीं मिला है। तो ये चीज़ जो है वो इंडिकेट कर रही है कि ये जो यहाँ तक जो आपको वैम से जो सॉल्यूशंस मिला था, वो सॉल्यूशन जो था वो मैक्सिमम ऑप्टिमम सॉल्यूशन था। इससे ज़्यादा उसको ऑप्टिमम नहीं कर सकते, उसको ज़्यादा उसको और कम नहीं कर सकते। ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम नहीं किया जा सकता। तो अब इसी प्रॉब्लम का जो लास्ट जो स्टेज बचेगा, स्टेप बचेगा, दैट इज़ यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब फाइनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चीज़ करनी है, आपको यू हैव टू मल्टीप्लाई, आप जिस सेल के अंदर आपने एलोकेशन किया है उसको उस सेल के वैल्यू के साथ आपको मल्टीप्लिकेशंस करना है, उस सेल के वैल्यू के साथ आपको उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो करना है। यानी 3 इंटू 50 प्लस 2 इंटू 250 प्लस 1 इंटू 100 is equal to, that is a 750. So 750 is your maximum ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी फाइनल ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट हो गया वो आपका 750 रुपीज़ हो गया। उससे कम जो है वो ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। सो दिस इज़ द अनदर मेथड ऑफ द ट्रांसशिपमेंट्स प्रॉब्लम। यानी एक तरीके से मैंने आपको दूसरा एग्जांपल है वो ट्रांसशिपमेंट्स प्रॉब्लम का जो है वो आपको सॉल्व करके दिखाने की कोशिश की है। इस प्रॉब्लम के अंदर किसी को डिफ़िकल्टीज है, देन यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, राइट। तो यहाँ पे जो है वो आपका एक तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थे, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर जो था वो बेसिक 2 मेथड थी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फाइंड आउट करने की। द फर्स्ट विच इज़ द फाइंड आउट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस मेथड। उसके अंदर 3 मेथड थी विच इज़ द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट कॉर्नर मेथड और आपका वोगल अप्रोक्सीमेशन। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 2 मेथड थी विच इज़ द फर्स्ट विच इज़ दी आपका फर्स्ट हो गया स्टेपिंग स्टोन मेथड, सेकेंड हो गया जो है वो आपका मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशंस मेथड, राइट। ये 2 ऑप्टिमम थे। अब स्पेशल केसेस की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर जो है वो स्पेशल केसेस के अंदर जो थे हमने 3 केसेस जो है वो डिस्कस किए। द फर्स्ट केस विच इज़ द अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट। जैसे ही आपके पास कोई अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको उसको कैसे बैलेंस करना है, राइट। वो आपको आइदर यू हैव टू ऐड द डमी सेल, आइदर यू कैन ऐड द डमी कॉलम, और उस तरीके से उस प्रॉब्लम को जो है वो आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस करके फिर आपको एज शूटेबल जो मेथड आपको दिया गया है या फिर आपको जो बोला गया है उस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देन द सेकेंड स्पेशल केसेस विच इज़ द मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और उसको हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, राइट। उस प्रॉब्लम को हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमम
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। और उस प्रॉब्लम के अंदर जो है वो सॉल्यूशन कैसे करना है, तो उस प्रॉब्लम के अंदर जो है वो बेसिक सॉल्यूशन जो है स्टार्ट करना है। आपको जो भी टेबल दिया गया है उस टेबल में से आपको सबसे बड़ा जो है वो नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है, उस नंबर में से बाकी सारे नंबर को आपको माइनस करना है। यानी आपको जो आपका फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। जैसे ही आपका प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को सूटेबल मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देन द अनदर थर्ड स्पेशल केसेस विच इज़ अबाउट द ट्रांसशिपमेंट्स प्रॉब्लम। अब ट्रांसशिपमेंट्स प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो आपके पास अभी जो मैट्रिक्स था वो सिर्फ m इंटू एन मैट्रिक्स था, यानी जो आपका नंबर ऑफ रो था वो नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशंस के अंदर साथ होके उसको हम लोग सॉल्यूशन जो टोटल फाइनल जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थे वो हम लोग आइडेंटिफाई करते थे। अब यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट्स प्रॉब्लम्स के अंदर जो आपके पास जो मैट्रिक्स रहेगा दैट इज द m इंटू एम प्लस एम इंटू एन, यानी 2 कॉलम और 2 रो जो है उसके मैट्रिक्स जो है ऐसी इस तरीके का मैट्रिक्स जो है वो एक साथ मल्टीप्लिकेशंस में हो गए। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द क्यू, राइट, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द क्यू, और उस क्यू को जो है वो आपको सारे डिमांड और सारे सप्लाई की जगह पे जो है वो ऐड कर देना है। उस तरीके से जैसे वो बैलेंस हो जाएगा फिर आपको सेम प्रॉब्लम को वैम से सॉल्व करना है, और जैसे ही वैम हो गया उसके बाद उसका जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया उसको आपको सेम प्रॉब्लम को ऑप्टिमम सॉल्यूशन से वो आपको फाइंड आउट करके जो है वो मोदी मेथड या फिर आपके पास अगर कोई दूसरा मेथड आपको एग्ज़ाम के अंदर जो सजेस्ट किया है उस मेथड से आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो इस तरीके से वेरिएंट जो थे प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर वो मैंने आपको एज़ पर द सिलेबस वो सारे आपको कंप्लीट करने की कोशिश की है। फिर भी ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर अगर किसी को डिफ़िकल्टीज़ होती है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। तो हम लोग जैसे ही एक डाउट सॉल्विंग सेशंस कंडक्ट करेंगे उस सेशन के अंदर आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मंडे से लेक्चर होगा उसके अंदर जो है वो हम लोग नया चैप्टर दैट इज़ द असाइनमेंट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। अभी इसके साथ मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपको मैं असाइनमेंट के अंदर जो है वो स्टेपिंग स्टोन और ट्रांसपोर्टेशन के 3 प्रॉब्लम्स दूंगा। ये आपको आप जो अपना बुक बना रहे हो वो बुक में सेम प्रॉब्लम जो है वो आपको सॉल्व करना है, राइट। सो ये जैसे ही आपका ख़त्म हो जाएगा तो एक चीज़ ये जीटीओ में कभी कभी एक जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर नॉर्मली जो इसका जो वेटेज रहता है जीटीयू के क्वेश्चन पेपर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो वेटेज रहता है वो 7 मार्क से लेके 10 मार्क तक का वेटेज रहता है, राइट। अब ये 7 से 10 मार्क का वेटेज के लिए एक कभी कभी ये 7 मार्क का एक आपका एग्जाम्पल हो गया, और थर्ड 3 मार्क का आपका एक थियरी क्वेश्चंस आपको कभी कभी पूछा जाता है। वो जो थियरी क्वेश्चंस जो नॉर्मली कभी कभी पूछा जाता है दैट इज़ दी ये जो है वो कभी कभी आपको पूछते हैं व्हाट इज़ द डीजनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो आपको ये डीजनरेसी जो है वो एक्सप्लेन करनी है। जैसे ही आपके पास कोई इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, राइट, विच इज़ कॉल्ड एज अ डीजनरेटेड, राइट। इफ़ द नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल are less than m plus n minus 1 where m is a row n is a column, the optimality test cannot be performed until the degeneracy of the solution is not solved। आप उसको ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है उससे फाइंड नहीं कर सकते जब तक आप जो है उसका डीजनरेसी जो है वो सॉल्व नहीं कर देते। यानी आप जब भी एग्ज़ाम में आपको पूछते हैं तो जैसे इस तरीके का प्रॉब्लम ऐसे 3 मार्क्स में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द डीजनरेसी इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द डीजनरेसी इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो आप ये चीज़ बता सकते हो कि द डीजनरेसी वी कैन एक्सप्लेन। आप उस तरीके से एक टेबल फॉर्म करके भी बता सकते हो, आप अपने हिसाब से थियोरेटिकल वे में भी बता सकते हो कि डीजनरेसी एक्चुअल है क्या। टू फाइंड आउट द डीजनरेसी इन द फिजिबल सॉल्यूशन
right? Initial basic feasible solution, we have one equation which is m plus n minus 1, where the m is designated as a number of row, n is designated as a number of column in this problem, and जैसे ही वो एलोकेशन नंबर ऑफ एलोकेशन सेल से वो सेम नहीं हो जाता, तब तक उसका ऑप्टिमलिटी जो टेस्ट यानी ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट नहीं हो सकता. टू सॉल्व द डीजनरेसी, नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल इज मस्ट बी इक्वल टू, जितने एलोकेशन सेल है इज मस्ट बी इक्वल टू विच इज द m plus n minus 1. सो द वैल्यू ऑफ एलोकेशन इज infinitesimal such that it does not affect the number of units, right? The cell should be selected such that it has a minimum cost coefficients in unoccupied cell, and second, which is the selected cell should not form a closed loop with the occupied cell. ये जो है वो दो कंडीशन के ऊपर जो है वो डीजनरेसी है वो एस्टैब्लिश हुई है, राइट? अब इस बेसिस के ऊपर जो है वो हमें डीजनरेसी है वो आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करनी रहती है, राइट? बेसिकली आप 3 मार्क्स के लिए इतना एक्सप्लेन करोगे तो ये चीज़ इनफ हो जाएगी कि डीजनरेसी के बारे में आप क्या समझते हो. डीजनरेसी आप जो है वो एलोकेशन करके एक टेबल को फॉर्म करके भी एग्ज़ाम दिखा सकते हो. ख़ास तरीके से मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये डीजनरेसी जो है वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए आप एग्ज़ाम में जब भी एक्सप्लेन करो तो ये इक्वेशन आपको एक्सप्लेन करना मस्ट रह जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन का ही रिलेशंस है, राइट? m plus n minus 1, जितना नंबर मिलता है उतने ही नंबर के एलोकेटेड सेल होने चाहिए. अगर सेम है दैट इज़ अ नॉन डीजनरेट प्रॉब्लम. अगर नहीं होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर डीजनरेसी है, और डीजनरेसी है तब तक जो है वो उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते. यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए एक कंडीशन ये बन जाती है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशंस है वो नॉन डीजनरेट होना चाहिए, राइट? यही चीज़ इन लोगों ने बोलनी है. सो ये एक थियरी कभी कभी आपको पूछी जाती है, तो 3 मार्क्स के लिए ये भी हमने साथ में आज डिस्कस करके कवर कर लिए. बाकी इस चैप्टर के अंदर जो है वो 7 to 10 मार्क्स के लिए आप ये कंटेंट जो है वो आई थिंक इनफ कंटेंट है. फिर भी अगर किसी भी प्रॉब्लम के अंदर आपको डिफ़िकल्टीज़, किसी भी मेथड के अंदर आपको डिफ़िकल्टीज़ हो रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और आप अपना जो डिफ़िकल्टीज़ है वो YouTube के कमेंट सेक्शंस के अंदर या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज करके जो चीज़ बता सकते हो. इसका जो असाइनमेंट वर्क होगा वो असाइनमेंट वर्क आपको आपके ऑफिशियल ग्रुप के अंदर एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो आपको मैं उसके फ़ोटोग्राफ्स जो है वो रख दूंगा. उसी फ़ोटोग्राफ के जो एग्जांपल है मैं आपको क्वेश्चंस रख दूंगा. वो जो क्वेश्चंस हो गए वो स्टेपिंग स्टोन के हो गए, ये मोदी मेथड के हो गए और ट्रांसिटमेंट्स के हो गए. नॉर्मली 2-3 एग्जांपल हो गए. वो 2-3 एग्जांपल आपके असाइनमेंट के पीछे जो आपका ये 14 असाइनमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके पीछे ये एग्जांपल आपको गिनना है, यानी आपका ट्रांसपोर्टेशन का असाइनमेंट वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. अभी तक काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करके अभी भी मुझे भेजा नहीं है, राइट? जो लिमिट था वो लिमिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है. प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली, और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपको ये एग्जांपल जो है जो आपको असाइनमेंट में दिए है उसको सॉल्व करके मुझे आपको मुझे मेल करना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. सो थैंक यू सो मच फॉर